So we will continue our study on fasting. और उपवास के विषय में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम आगे जारी रखेंगे। You are all blessed by the teaching on fasting. क्या आप आशीषित हैं उपवास के अध्ययन से? You have learned some things. और आपने कुछ सीखा है? You are applying those principles. क्या आप जो सिद्धांत यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसको उपयोग में ला रहे हैं? Okay, we studied 4 points last week. और 4 बिंदुओं पे हमने गौर किया। The purpose for fasting. और उपवास का उद्देश्य। So we had it in the acronym of fasting, FASTING. और अंग्रेजी शब्द जो फास्टिंग है उससे हमने उसको निकाला। Okay, the first word, first alphabet F stands for families. We have to fast and pray for our families. और F से है families, हमें अपने परिवारों के लिए उपवास करके प्रार्थना करना है। These days we hear about so many things happening in the families. और आजकल हम जो है बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं जो परिवारों में हो रहे हैं। So many deaths taking place in the believers' families. और विश्वासी परिवारों में जो है मौत हो रही है। So many young people going away from God. और बहुत सारे जवान जो है परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। And we have to pray for our families. और हमें अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना है। The next alphabet A stands for altering or changing God's declared intentions or judgments. और ए से है जो परमेश्वर ने निर्धारित की जो योजनाएं हैं उसको हम उपवास के द्वारा बदल सकते हैं। Means God wants to destroy, so we will change that. और परमेश्वर अगर नाश करना चाहता है तो हम अपने उपवास और प्रार्थना से उसको बदल सकते हैं। But the good plans of God must be fulfilled in our lives. और जो अच्छी योजनाएं हमारे जीवन के लिए हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। Okay, God declared that He's going to destroy Nineveh, but then the people repented and fasted and prayed for 3 days. और परमेश्वर ने घोषणा की जो निनवे शहर है उसको वो नाश करने जा रहा है, लेकिन 3 दिनों तक लोगों ने पश्चाताप करके उपवास किया और ऐसे होने से And रोक the third दिया। alphabet is yes. और तीसरा जो है अक्षर वो है एस। To destroy the spiritual interferences of the evil forces against the blessings of God that God has kept for us. और जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशीष रखी है उसको जो आत्मिक रूप से जो आके उसके विरोध में खड़े होते हैं उन ताकतों का हम नाश करने जा रहे हैं। I remember those days before 2002 we used to pray. We used to have spiritual warfare prayer every Saturday. और 2002 से पहले वाले दिनों को मैं याद करता हूं जब हम आत्मिक मल्ल युद्ध करते थे। Every Friday we used to have fasting and prayer. और हर जो फ्राइडे को हम फास्टिंग और प्रेयर करते थे। But on Saturday we used to have spiritual warfare prayer. लेकिन शनिवार को जो है हम आत्मिक मल्ल युद्ध करते थे। And the main reason for the fasting and the spiritual warfare prayer were 2 reasons. और 2 कारणों से हम ये करते थे। One was God should bless the next days, that is Sunday service. और पहला ये कि जो आने वाला जो सर्विस है संडे सर्विस है उसको परमेश्वर आशीषित करे। And the second thing was for a church building. और दूसरी बात जो थी कि परमेश्वर एक भवन को दे। And accordingly God gave us, sure He gave us a very good place. और जरूर परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा स्थान दिया था। But we don't know, we lost that property. और हमने उस स्थान को खो दिया। About 8 years back. करीब 8 साल पहले। We are still struggling to get a place. और आज भी हम उसके लिए प्रयत्न में लगे हुए हैं। But then today we had a leaders meeting. और आज हमारे अगुओं की एक मीटिंग हुई। And we decided that we should go for it very soon. और हमने ये निर्णय लिया कि हम बहुत जल्द उसके लिए जाएंगे। So we are going to advertise on the newspaper coming Friday, Saturday and Sunday. और आने वाले फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हम जो है अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं इसके लिए। That we need a place like this. और हमें ऐसा एक स्थान चाहिए। So those who are fasting, so you make it a point that the evil forces which are stopping this blessing that God has kept for our church, that all those powers will be broken and destroyed. और जो लोग उपवास करके प्रार्थना करते हैं वो इस बात के लिए भी प्रार्थना करें कि जो भी आत्मिक शक्तियां इसके विरोध में आती हैं वो रुक जाए। And prayer has always been that we should get double fold of what we lost. और हमेशा हमारी ये प्रार्थना रही है कि जो कुछ हमने खोया है उसका दुगना भाग हमें मिले। We had about 27,000 square feet of land at that time. और हमारे पास 27,000 वर्ग फीट की भूमि थी उस समय। So we need to have 54,000 square feet. और हमें अब
54,000 वर्ग फीट की जमीन के लिए हम, And we had about 5,000 square feet of built up area. और हमारे पास जो भवन था वो 5,000 स्क्वायर फीट का था, And so we need to have 10,000 square feet of built up area. और हमें जो है 10,000 स्क्वायर फीट जो है भवन चाहिए। You know, I used to pray that we must have thousands of people in the church. और मैं इस प्रकार से प्रार्थना करता था कि मेरे पास हमारे कलीसिया में हजारों लोगों की संख्या होनी At चाहिए, least 2,000 must be there every Sunday. और कम से कम हर रविवार को 2,000 लोग होने And this चाहिए। church must reach out to the nations of the world. और इस कलीसिया के द्वारा जो विश्व के देश हैं उनकी ओर हमें जाना है। Sure, God has raised many people from this church, और जरूर लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को उठाया है इस कलीसिया से, and they are all ministering in different parts of the world. और वो सब जो है विश्व के अलग अलग स्थानों पे सेवकाइयां We कर have रहे got हैं। people working and ministering in African continent, European continent, and North American continent. और जो हमारे यहाँ से जो लोग गए हैं वो है अफ्रीकन महाद्वीप और यूरोपियन महाद्वीप और North America. नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप में कार्य कर रहे हैं। So God has blessed in that way. और परमेश्वर ने इस तरह से आशीषित किया But है। then we need to see that many people are coming up so that they can be mighty witnesses for God. और हम ये चाहते हैं कि और ऐसे लोग तैयार किए So जाएं। through fasting and prayer we break the spiritual interferences of Satan and his forces. और उपवास और प्रार्थना के द्वारा शैतान की शक्तियों को हम रोकते We हैं। studied how God sent Gabriel to Daniel in answer to prayer. और हमने इस पिछले सप्ताह पढ़ा कि किस प्रकार दानियल ने जब प्रार्थना की तो गिब्रियल जो स्वर्गदूत है उसको भेजा गया, And so Satan also sent an evil spirit. और शैतान ने भी अपनी एक आत्मा को वहां पर So there भेजा। was a fight in the heavenly places between God's angel and Satan's angel. और परमेश्वर के स्वर्गदूत और जो शैतान के दूत हैं उनके बीच में एक आत्मिक युद्ध हुआ। So God sent reinforcements by sending Michael. और तब वहां पे परमेश्वर ने मिकाएल को भेजा ताकि वो उनकी सहायता करने पाए। And Daniel did not give up his fasting. और डैनियल ने उस समय अपना उपवास नहीं तोड़ा, And he was continuously praying and fasting and seeking God. और वो जो है निरंतर परमेश्वर की ओर देख के उपवास करते हुए प्रार्थना कर So we रहा are है। not going to give up. और हम भी जो है नहीं We are continuously going to seek God और हम भी जो है निरंतर परमेश्वर की ओर देखेंगे till we receive an answer from our Heavenly Father. जब तक कि हमें एक उत्तर नहीं मिलता परमेश्वर की ओर Because the से। Bible says earth and whatever is upon the earth belongs to God. और वचन कहता है कि पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है वो परमेश्वर का So है, Bhopal and all the things in Bhopal belong to our God. और भोपाल में जो कुछ है वो हमारे परमेश्वर का So है। let's pray that God would give us a breakthrough in this area. और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर यहाँ पे हमें एक ब्रेक थ्रू को And दे। the fourth alphabet is T. और जो चौथा अक्षर है वो है टी। Triumph in adversities and triumph over adversaries. और जो हमारे शत्रु हैं और जो हमारे जो विरोध में जो ताकतें हैं उनके ऊपर हमें जय प्राप्त करनी है। Okay, so we studied these 4 points last week. और हमने ये जो 4 बिंदुओं पे अध्ययन किया पिछले So you are in a situation where you think you cannot overcome. और आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे आपको लगता है कि आप इसमें जय नहीं प्राप्त कर सकते, But when you fast and pray and seek God, God will give you the victory. और जब हम उपवास करते हुए परमेश्वर की और प्रार्थना में देखते हैं तो वो हमें जय We देगा। studied from book of Esther how they got victory. और हमने एस्थर की किताब से पढ़ा कि किस प्रकार से उन्हें जय प्राप्त We हुई। can read about Jehoshaphat how he got a great victory. और हम यहोशापात से भी हम सीख सकते हैं कि कैसे उसे जय प्राप्त की। And so today we will continue. और हम इसको जारी रखेंगे। And the next alphabet is I. और अगला अक्षर जो है वो है आई। So we fast so that we can impact our ministries. और हम उपवास करते हैं ताकि हमारी जो सेवकाइयां हैं उसके ऊपर हम प्रभाव डाल सकें। Okay, I stands for impacting our ministries. और आई का मतलब है अपने सेवकाइयों के ऊपर प्रभाव को डालना। And we read that verse, Mark chapter 9 verses 28 and 29. और मरकुस रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 28 और 29 को हम पढ़े। The disciples came to Jesus and asked Jesus, Lord, why we could not cast out that evil spirit? और जो दुष्टात्मा थी उसको हम क्यों नहीं निकाल पाए? Then Jesus said, this will go only by fasting
and prayer. और यीशु ने कहा कि ये सिर्फ जो है उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही जा सकता है। And in Hindi we don't see the word fasting, but then I think in 17:21 of Matthew, the word fasting and prayer comes in Hindi Bible. और मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के 21वें वचन में हम उपवास और प्रार्थना के विषय में देखते हैं। When we read about fasting, there is a very good chapter in the book of Isaiah. और यशायाह नबी की किताब में एक बहुत अच्छा अध्याय है जब हम उपवास के विषय में पढ़ते हैं। It is anybody knows which chapter is that? 58. और वो है 58 का अध्याय। Okay, we will just read one verse from the 58th chapter. और सिर्फ हम एक वचन को पढ़ेंगे 58। Last week I told you go home and read many few chapters I told you. और मैंने पिछले सप्ताह आपसे कहा था कि कुछ जो अध्याय हैं उनको आप जाके पढ़ें घर पर। Did you read? Yes? Okay, some of you read, some of you did not read. Okay. So today you are going back home and you are going to read chapter 58 of Isaiah. और आज आप घर जाके 58 अध्याय को पढ़ेंगे यशायाह नबी की। And we are going to read verse 6. और हम जो है उसके 6ठे वचन को पढ़ेंगे। It speaks about God's chosen fast. और जो परमेश्वर ने जो निर्धारित किया है उस उपवास के विषय में वो बोलता It है। says in the 6th verse like this: Is this not the fast that I have chosen, to loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। Okay, so we read 4 things here in English, but then only 3 things are translated in Hindi. और यहाँ पे हम 4 बातों को पढ़ते हैं लेकिन 3 बातों का ही अनुवाद हुआ है हिंदी में। And when we study, there are 4 different kinds of bondages on human beings. और 4 अलग-अलग तरीके 4 अलग-अलग बंधुआइयां हैं जो मनुष्यों के ऊपर आती हैं। Okay, so what are those 4 bondages? और वो 4 कौन सी हैं? So when we fast and pray, जब हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं these bondages are broken. और ये जो हमारे ऊपर बंधन है वो टूटते हैं। Amen. So when you pray, fast and pray, जब आप उपवास करके जब प्रार्थना the करते हैं bondages of people in the city of Bhopal should be broken. जो परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं उपवास करके जो भोपाल के ऊपर जो लोगों के बंधन है वो टूटने चाहिए। So there are 4 kinds of bondages. और 4 प्रकार के बंधन हैं। Anybody remembers? I have already told you a couple of times. What are the 4 different kinds of bondages that are in the lives of people? It is okay. Yeah, it comes under one bondage. What bondage is that? Anybody remembers? I shared with you. Nobody remembers. Who said generational curses? Prasad. Okay, that's 3rd point. You left the first, second. Very good. At least you could remember that. Okay, the first is bondages to sin. और जो पहला है पाप के लिए बंधन। Here it says we have to lose the bonds of wickedness. और यहाँ पे लिखा है कि जो विकेटनेस है उसका जो बंधन है वो हमें तोड़ना है। Okay, so when we fast and pray, God says, is this not the fast that I am pleased with, that you break the bonds of wickedness? फिर से पढ़ना उस वचन को। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। Okay, so the first thing is it is to loose the bonds of wickedness. और जो पहला है वो है जो अन्याय के बंधन है उसको तोड़ना। So people are in different kinds of sins and sinful habits. और लोग जो है अलग-अलग पापों में हैं, लिप्त हैं। They are all wickedness. The Bible says wickedness. और जो वचन कहता है दुष्टता। Okay, but it's not well translated in Hindi. So it is wickedness in the lives of people. और जो है दुष्टता है लोगों के जीवन में। Because anybody in sin is called wicked according to the Bible. और वचन में जो भी दुष्टता करता है वो पाप करता है, सब वचन में लिखा है। Whoever sins is actually wicked. और जो कोई पाप करता है वो एक दुष्ट है, वचन में ऐसे लिखा है। There is no less
category of sinner. So every sinner is talked about in the Bible as wicked. और जो भी पाप करता है वचन उसको दुष्ट कहता The है। Bible says there is no peace to the wicked. और वचन कहता है कि जो दुष्ट है उनके अंदर कोई शांति नहीं We रहती। read it twice in the book of Isaiah. Twice it comes. और 2 बार ये यशायाह नबी की किताब में आता So when you fast and pray, है। जब आप उपवास करके प्रार्थना करते हैं then what we are doing is we are breaking the bondages from the lives of people. और हम जो है लोगों के जीवन में जो जुए हैं, जो बंधन है, उसको तोड़ रहे हैं। Jesus said, whoever commits sin is a slave to sin. और यीशु ने कहा जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। So Jesus says, if I, the Son, liberates you, you will be liberated indeed. और यीशु कहता है कि अगर मैं तुम्हें आजाद करूंगा तो तुम जरूर आजाद हो Jesus जाओगे। also said, you shall know the truth and the truth shall set you free. और यीशु ने ऐसा भी कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य जो है तुम्हें आजाद So करेगा। when we fast and pray, जब हम उपवास करके प्रार्थना you करते know there हैं are lots and lots of sins in this city. और आप जानते हैं कि शहर में बहुत सारे पाप होते हैं And the people are bound to those sinful habits. और जो लोग हैं वो उसमें बंधे हुए हैं। So when we pray, God breaks those bondages. जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो बंधन तोड़े जाते हैं। Okay, so then we see people getting saved. और उसके बाद हम देखते हैं लोग जो है बचाए जाते हैं। Okay, so people, then the churches grow. उसके बाद जो है कलीसिया में बढ़ोतरी होती है। Whenever God sent a revival in different countries, और जब कभी परमेश्वर ने अलग-अलग देशों में जागृति को भेजा, okay, God convicted them of their sins. और परमेश्वर ने उनको अपने पापों के बारे में कायल किया They repented of their sins. और उन्होंने पश्चाताप किया They came to God. और वो परमेश्वर के पास आए। Okay, so that's what happens when we fast and pray. और यही होता है जब हम उपवास करके प्रार्थना करते So हैं। we have to break the bondages of sin from the lives of people. और जो लोगों के अंदर जो बंधन है, पाप के बंधन है, उसे तोड़ना है हमें। And then the second thing is, और जो दूसरी बात है, it says to undo the heavy burdens. और जो बड़े-बड़े बोझ हैं उनको अलग करना। Okay, so undo the heavy burdens. Okay, I can call it as, it can be generational curses. So actually the Hebrew words, I went and consulted a Hebrew scholar and he said whatever I was sharing, he said it is exactly right according to the Hebrew scriptures. और मैंने एक इब्रानी विद्वान को इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जो कुछ आप बांट रहे हैं बिल्कुल सही है। Okay, so people are bound to generational curses. और जो लोग हैं पारिवारिक बंधन भी बोल सकते हैं, पीढ़ी का बंधन। और पीढ़ी के बंधन या पारिवारिक बंधन में बंधे हुए हैं। You know, God told that He will require the sin from the third and the fourth generation. और परमेश्वर ने कहा वो तीसरी और चौथी पीढ़ी से लेखा लेगा पाप Today there का। are so many families, they are having generational curses. और आज ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके ऊपर ऐसे पीढ़ी के पाप हैं। Okay, especially people who are from non-Christian families. और ऐसे लोग जो कि गैर मसीह परिवारों से हैं। Okay, but in India we don't see so much among Christian families generational curses, but there are generational curses even in Christian families in India. और भारत में हम जो मसीह परिवारों में ऐसे पीढ़ी के पाप को नहीं देखते, फिर भी कुछ हैं। Okay, पीढ़ी के श्राप को, पीढ़ी के श्राप को। Okay, so but then in Western countries, even among Christian families, there is so much of generational curses. और पश्चिम देशों में जो मसीह परिवार हैं उनके ऊपर भी पीढ़ियों के श्राप हैं। But today there is so much of generational curses in the families who are around us. और आज हमारे इर्द गिर्द जो परिवार हैं उनके ऊपर कितने पीढ़ियों के श्राप हैं। So we have to, when we fast and pray, we break those bondages. जब हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो ऐसे बंधनों को हम तोड़ने पाते हैं। Maybe sometimes in future I will share about you how generational curses operate in the lives of people. और आने वाले समय में किस प्रकार से ये जो पीढ़ी के श्राप है लोगों के जीवन में कार्य करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। And then the third thing it says is, and it says to let the oppressed go free. और तीसरी बात जो कहता है जो बंधनों में है उनको आजाद किया जाए। Okay, these are the people. Actually, it cracks in the Hebrew word. It's ratsats, which means crack in pieces, get crushed. So grievously oppressed. So it means people who are under bondages of witchcraft.
और यूनानी शब्द में ऐसा लिखा है जो पूरी तरह से पिसे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं। इसका मतलब है जो जादू टोने के श्रापों में फंसे हैं। Okay, so we have to deliver the people who are bound by witchcraft. और ऐसे लोगों को हमें छुड़ाना है जो जादू टोनों में फंसे हुए हैं। And then the fourth group is said here, और जो चौथा समूह है, and that you break every yoke. और हर एक जुए को तोड़े। Okay, so we have to break every yoke, and that actually means people are bound to religions, to babas and gurus and occultic practices and even to cultic practices. और ऐसे जो श्राप जिसके द्वारा जैसे बाबाओं का या धर्म का या गुरुओं का या ऐसे जादू टोने के जो तरीकों से लोगों को बुलाया जाता है, उन सब बातों से टूटने का। Okay, so today we know our nation as a religious country is bound to religion. और हमारे देश को हम एक धार्मिक देश के रूप में जानते हैं। So people are bound to different kinds of religions and religious practices. और लोग जो है अलग-अलग धर्मों से एक तरह से बंधे हुए हैं। And they think their religious practices will take them to God. और उन्हें ऐसा लगता है जो धार्मिक कार्य वो कर रहे हैं वो उन्हें परमेश्वर की ओर लेकर We जाएगा। have to clearly understand our righteous activities, works are all like filthy rags in the sight of God. और जो हम धार्मिक कार्य करते हैं वो सब मैले चित्रों के समान है परमेश्वर की दृष्टि में। So whatever you do and I do, righteous things, religious things, they are all like filthy rags. और जो कुछ हम अच्छे कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, वो सब मैले चित्रों के समान है परमेश्वर I के give an सामने। illustration like this. और मैं इस तरह से समझाता हूँ इस बात को। Maybe you come to my house. आप मेरे घर आते हैं। Okay. And I am full of leprous sores. और मेरे ऊपर जो है जो कोड़ का पूरा कोड़ के फोड़े हैं। Okay, so because you have come in a golden glass, I give you milk. और आप आए हैं इसलिए मैं जो है एक सोने के ग्लास में आपको दूध देता हूँ। Will you take that? क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? My fingers are all cut. It's all bleeding, sores because of leprosy. Will you take that milk? और कोड़ की वजह से जो है मेरे हाथ से खून बह रहा है और फोड़े हैं मेरे हाथ में। क्या आप मुझसे ऐसा एक सोने के ग्लास में दूध को स्वीकार करेंगे? Everybody will take. First of all, you will not come to my house. और पहली बात तो आप शायद मेरे घर ही ना आए। If you come, you will not take anything. और अगर आप आते हैं तो आप कुछ भी नहीं लेंगे। We used to go to one family. और हम एक परिवार में जाते There थे। was some disease in that family. और उस परिवार में कुछ ऐसा रोग था। We never take even a glass from that house. और हम जो है ग्लास भी वहां से नहीं लेते। So we are sinners. और हम जो है पापी हैं। So we are all having cold. We are all having कुष्ठ रोग, leprosy. और हमारे पास जो है हमारे ऊपर पूरा कुष्ठ रोग है। With that we are giving God take this. और हम उससे परमेश्वर की ओर अर्पण कर रहे हैं कि परमेश्वर ये ले स्वीकार कर। Will He take from us? क्या वो हमसे लेगा? That's why Bible says all our righteous works are like filthy rags. और इसलिए वचन कहता है जो कुछ हम धर्म के कार्यों को करते हैं वो मैले चित्रों के समान है परमेश्वर के सामने। लेकिन लोग जो है इसको जानते नहीं हैं। So people are bound to all these things. और इसलिए लोग जो है बंधे हुए इन सब चीजों में। And they are convinced to continue their things. और वो अपने हृदय में पूरी तरह से इसके बारे में सही है सोच के आगे बढ़ते हैं। Every individual has an internal desire to please God. और हर एक व्यक्ति के अंदर एक आंतरिक इच्छा रहती है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे। Oh, he wants to be forgiven of his sins. और वो अपने पापों से मुक्ति को चाहता है। That's why all these religions started. और इसलिए ये सारे धर्म शुरू हुए। But instead of giving deliverance, these religions have become bondages upon people. और ये सब छुटकारा देने के बजाय ये जो है जो लोगों के ऊपर एक बंधन हो गए हैं। So by fasting and prayer we break these bondages. और हम उपवास और प्रार्थना के द्वारा इन सारे बंधनों को तोड़ते हैं। Some missiologists say it is easier to win an atheist for Jesus than a religious person to Jesus. Missiologists mean mission के विद्वान। मिशन के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं। Missiologists say it is easier for atheists to come to God
than a religious person to come to Jesus. और ऐसा मिशन के लोग इस प्रकार से कहते हैं कि जो एक नास्तिक है उसका परमेश्वर के पास आना आसान है, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति का परमेश्वर के पास आना कठिन है। Okay, so by fasting we break these 4 kinds of bondages. और उपवास के द्वारा ये 4 प्रकार के बंधनों को हम So तोड़ते हैं। don't forget these 4 bondages when you pray for people. और इन 4 बंधनों को आप ना भूलें जब आप लोगों के लिए प्रार्थना The 5 करें। people you are going to adopt to pray for, और जिन 5 लोगों को आप गोद ले रहे हैं, जिनके लिए आप प्रार्थना करने वाले हैं, you break the bondages of sin from their lives. और उनके जीवन में जो पाप है उनके बंधनों को तोड़ें, Break the bandages of generational curses. और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके ऊपर श्राप है उसको तोड़ें। I'm not telling everybody is under generational curse. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक जो है पीढ़ी के श्रापों से पीड़ित है। And if they are under generational curses, by your prayers, those generational curses are broken. अगर वो ऐसे पीढ़ी के श्रापों में है, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो टूटे जाएंगे। And then we have to break the bondages of witchcraft. और जो जादू टोना के जो बंधन है उसको हमको तोड़ना And है। also by fasting and prayer, we break the bondages to religions and philosophies and babas and gurus. और उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम धर्म के जो बंधन है और बाबा गुरुओं के जो बंधन है और फलसफों के जो बंधन है उसको हम तोड़ने I पाते हैं। fast little because I want to complete today. And then the next alphabet is N. और जो अगला अक्षर है वो है N। N stands for nations. We have to pray for nations. हमें जो है देशों के लिए प्रार्थना करना है। We know the very famous verse, 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. और दूसरा इतिहास 7:14 इस प्रकार से If कहता my है, people who are called by my name humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I in heaven will hear their prayers, forgive their sins, and heal their land. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Yes, so we have to pray for our nations. और हमारे देशों के लिए हमें प्रार्थना करना है। Elijah was on partial fast for almost 3 years. और 3 साल तक जो है एलिया एक आंशिक उपवास पर था। And after that we know he could bring down fire from heaven. और उसके बाद हम जानते हैं वो स्वर्ग में से अग्नि को लेकर आने पाया। When fire came upon the sacrifice, we know the entire nation of Israel fell on their faces and they came back to God. और जब बलि के ऊपर आग गिरी तो हम जानते हैं इजराइल का सारा देश जो है अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर को उसने स्वीकार किया। Last week I said Ezekiel fasted for 430 days. और पिछले हफ्ते मैंने कहा कि एजेकियल नबी जो है 430 दिनों तक उसने उपवास किया। God told him to fast. और परमेश्वर ने उसे ऐसा करने को कहा। 390 days for Israel, 40 days for Judah. और 390 दिन जो है इजराइल के लिए और 40 दिन जो है यहूदा के लिए। And then when we read the book of Joel, और जब हम योएल नबी की किताब को पढ़ते हैं, it's a book of fasting for the nation. और ये जो किताब है वो देशों के लिए उपवास की किताब है। God tells about the pathetic condition of the nation. और जो जिस बुरी परिस्थिति में जो देश है उसके विषय में परमेश्वर वहां पर कहता God है। speaks about famine, drought, और वहां पे जो है परमेश्वर जो है सूखापन और अकाल के विषय में बात करता है। There are so many disappointments that happened to the people. और जो निराशाएं वहां के लोगों के ऊपर हुई वो सब बोलता है। Then God told Joel, tell the people to declare a fast, proclaim a fast. और योएल से कहता है कि लोगों से कहो कि एक उपवास की घोषणा करें। Okay, you go home and read 3 chapters of Joel. और घर जाकर आप जो 3 अध्याय हैं योएल के उसको पढ़ें। So when you fast and pray, in the 21st verse of 2nd chapter, God says, और जब आप उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो 21वें वचन में दूसरे अध्याय के परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord has done marvelous things. हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े-बड़े काम किए हैं। Okay, so when we fast and pray, जब हम उपवास करके प्रार्थना God करते does हैं great things. तो परमेश्वर बहुत बड़े-बड़े कार्यों को करता है। After the 21st verse, we can read what great things God is going to do. और 21वें वचन के बाद हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर वहां पे क्या महान कार्य God is करने saying, वाला है। I will pour out rain so that you will have abundance. और
और परमेश्वर वहां पर कहता है कि मैं वर्षा को लेके आऊंगा ताकि वहां पे बहुतायत हो। And whatever the years eaten by the locusts, by the famines and other things, God says, I will restore. और जो टिड्डियों ने जो वर्षों को खाया, समय को खाया, वो सब मैं वापस लेकर आऊंगा। And then God says, I will pour out my spirit upon all flesh. और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा को सारे जनों के ऊपर उड़ेलूंगा। And the young men will see visions and old people will see dreams. और जो जवान हैं वो स्वप्न को देखेंगे और जो बुजुर्ग हैं वो दर्शन को देखेंगे। And they will prophesy. और वो नबूवत करेंगे। Okay, so time has come that God pours out His Holy Spirit. और समय आ गया है कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेले। So we have to pray for the nations. और हमें इसलिए जो है अपने देश के लिए और देशों के लिए प्रार्थना। We have to be people of the world. और हमें जो है विश्व के लोग होना है। We should not be worldly, but we should be people of the world, praying for the world. और हमें जो है दुनियादारी में नहीं लिप्त होना है, हमें दुनिया के लिए, हमें देशों के लिए प्रार्थना Then करना है। Jesus said, when the Holy Spirit comes, you shall be my witnesses in Jerusalem, all Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. We cannot go to every place, but we can at least pray for every nation. और हम हर एक स्थान पर नहीं जा सकते, लेकिन हम हर एक स्थान के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। So we need to pray for the nations. और इसलिए हमें जो है देशों के लिए प्रार्थना Let us pray for India. हमें भारत के लिए Let प्रार्थना us pray for Bhopal. हम भोपाल के लिए प्रार्थना Let us pray for the nations of the world. और हम देशों के लिए प्रार्थना We करें। know the nations of the world are in problems. और हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि जो है गड़बड़ी चल रही है हर एक देश में। And we really need to pray that God would do something in the nations. और हमें जरूर प्रार्थना करना है कि इन देशों में परमेश्वर कुछ करेगा। And then the last point is last alphabet is G. और जो आखिरी अक्षर है वो है जी। So we have to pray for guidance. और हमें मार्गदर्शन के लिए We प्रार्थना करनी है। fast so that God will guide us in the situations. और हम उपवास करते हैं ताकि ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। The 58th chapter of Isaiah speaks about fasting. और यशायाह नबी की किताब के 58वें अध्याय में जो उपवास के विषय में बात करती In the है। 11th verse we read, और जो 11वां वचन है उसमें इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, the Lord will guide you continually. और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। Okay, and will guide you continually. और निरंतर हमारा मार्गदर्शन करेगा। And Amos chapter 3 and verse 7 says, और आमोस नबी में 3रे अध्याय के 7वें वचन में इस प्रकार से God लिखा है, says, shall I do something without revealing to my servants, the prophets? 3:7. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। Okay, so God will reveal or guide us what we have to do or what is going to happen. और परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें बताएगा, प्रकट करेगा कि क्या हमें करना है। Before destroying Sodom and Gomorrah, और सदोम और गमोरा को नाश करने से पहले God told Abraham, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, before telling Abraham, God says, shall I hide this from my servant Abraham? और उससे बोलने से पहले परमेश्वर कहता है कि क्या मैं अपने दास इब्राहिम से इस बात को छुपाऊं? Genesis chapter 18 and verse 17 says, और उत्पत्ति 18 की 17 में इस प्रकार से लिखा so है, God told him that he is going to destroy Sodom and Gomorrah. और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वो उसका नाश करने जा रहा And we है। know Sodom, and last Sunday we saw that Abraham interceded that God would not destroy Sodom and और Gomorrah. पिछले रविवार को हमने देखा इब्राहिम ने हस्तक्षेप किया कि परमेश्वर उसका नाश न करे। Okay, and then we saw the shortcoming in his prayer. और हमने देखा कि प्रार्थना में उसके क्या कमी रह गई थी। Okay, and then let's read Ezra chapter 8 and verse 21. और एजरा नबी की किताब के 8वें अध्याय के 21वें वचन को हम पढ़ें। The Bible says like this, then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God to seek from him the right way for us and our little ones and all our possessions. तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। Okay, so God would guide them in the traveling. So that's what they prayed for. और परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन दिया उनकी यात्रा में, ऐसे ही उन्होंने प्रार्थना भी की। Daniel fasted and prayed for God's guidance. और दानियल नबी ने जो है परमेश्वर की ओर देखकर उपवास करते हुए प्रार्थना किया कि उसे मार्गदर्शन मिले। God will reveal unto him what is going to happen. और परमेश्वर उसे दिखाएगा कि क्या होने वाला है। We read
दानियल नबी की किताब के 9वें और 10वें अध्याय में हम इसको पढ़ते हैं। If you read Acts of the Apostles chapter 10 and verse 30, और अगर आप प्रेरितों के काम 10 के 30 को we पढ़ें read about Cornelius' prayer here. और वहां पर हम कुरनेलियस की प्रार्थना के It बारे में says like पढ़ते हैं। this, 30th verse. So Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। Okay, so he was talking. So the angel comes and tells Cornelius, go and call Philip Peter. He will share with you the things of life. और वहां पर स्वर्गदूत ने आकर कुरनेलियस से कहा कि जाओ पतरस को बुलाओ और भेजो और वहां पर परमेश्वर के वचन को वो बांटेगा। So because when he was fasting and praying, God guided him. और जब वो उपवास करते हुए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे मार्गदर्शन दिया। We read about God's guidance to Paul in the 27th chapter of Acts. और प्रेरितों के काम के 27वें अध्याय में हम पौलुस को किस प्रकार से मार्गदर्शन मिलता है उसके विषय में पढ़ते So हैं। we need to fast and seek God so that God would guide us. और हमें उपवास करते हुए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें मार्गदर्शन See, देता है। you and I know very little. और मुझे और आपको जो है बहुत कम मालूम है। We don't remember many of the things of the past. और जो पुरानी बीती हुई बातें हैं वो सब हम भूल जाते हैं। And what is happening today we may remember. और जो आज हो रहा है शायद हमें वो याद हो। We don't know what will happen after some time, after 1 day, after 2 days, after an hour, where we are going to be. Nobody knows. और 1 घंटे बाद कुछ दिनों बाद हम कहाँ होंगे किसी को नहीं मालूम। But when God looks at you and me, जब परमेश्वर आपके और मेरी ओर देखता है you can see through from our birth to our death. तब वो हमारे जन्म से लेके मृत्यु के समय तक को पूरा देखता है। Accordingly he can guide. और उसी प्रकार से उसी के अनुसार वो हमें मार्गदर्शन दे Today सकता maybe you है। may think if I become a doctor, if I become an engineer, I will be able to earn well, have a good career. और आज आप सोच सकते हैं कि मैं अगर डॉक्टर बन जाऊं, मैं एक इंजीनियर बन जाऊं तो मेरा कैरियर बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। But maybe God wants you to be a journalist, और हो सकता है परमेश्वर आपको एक पत्रकार बनाना where चाहे you can be excelling. और वहां पर आप उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। But then because you are all leaning upon your understanding, you are just trapped in that particular career. क्योंकि हम अपनी समझ की ओर देखते हैं इसलिए वहीं पे फंसे हुए हैं। Maybe God wants you to be an apostle, और हो सकता है परमेश्वर आपको एक प्रेरित बनाना चाहता but है, then your concentration is on something else. लेकिन आपका जो पूरा ध्यान केंद्रित है वो किसी और चीज पर When है। the church at Antioch were fasting and praying, जब अंत्योकिया की कलीसिया जो है उपवास करके प्रार्थना कर रही थी, so the Holy Spirit told, separate Barnabas and Saul and send them on ministry. और तब पर पवित्र आत्मा ने कहा कि पौलुस और बरनबास को अलग करो और उन्हें सेवकाई के लिए भेजो। And then we know how they turned the world upside down. और तब हम जानते हैं कैसे उसने दुनिया को उलट पुलट कर Otherwise they would have been just stayed in the city of Antioch. नहीं तो सिर्फ वो अंत्योकिया शहर में रह जाते, We would not have the book of Acts of the Apostles. और हमारे पास प्रेरितों के काम की किताब नहीं होती, We would not have the epistles of Paul. और जो पौलुस है उसकी जो पत्रियां हैं वो हमारे पास नहीं होती। So know God's plan for your life. और अपने जीवन में जो परमेश्वर की योजना है उसको देखें, Receive the guidances of the Lord. Receive the guidance from the Lord. और प्रभु से मार्गदर्शन को पाए अपने जीवन के लिए। Sure, you delight in the Lord, you will fulfill the desires of your heart. और जरूर जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर आपके सारे जो योजनाएं उसको पूर्ण करेगा। Okay, but then you have to understand God's plan also, God's will in your life. लेकिन आपको जो परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में उसको भी समझना है। Just we will read one verse and close for today. Let's read Amos chapter 2 and verse 11. आमोस नबी की किताब 2 अध्याय के 11वें वचन को हम देखें। It says like this. God says, I wanted to make it says 4:11, I raised up some of your sons as prophets and some of your young men as Nazarites. Is it not so? O you children of Israel, says the Lord. 12th verse says, but you gave the Nazarites wine to drink and commanded the prophets saying, do not prophesy. और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया,
हे इस्राएलियों, क्या यह सब बात सच नहीं है? यहोवा की यही वाणी है, परंतु तुमने नाज़िरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी न करें। Because you have stopped the calling of God upon your children. और जो परमेश्वर की बुलाहट थी अपने बच्चों के लिए उसको रोका तुमने। That's what is written here. और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। So we need to get the guidance from the Lord. और प्रभु के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त Lord, करना है। what do you want from me? और परमेश्वर तुम मेरे द्वारा क्या चाहता What है? do you want from my family? और मेरे परिवार के द्वारा तू क्या चाहता What do है? you want from my children? और मेरे बच्चों के द्वारा तू क्या चाहता So है? let us seek God's face in fasting for God's guidance. अब हम परमेश्वर की ओर देखें उपवास में प्रार्थना करते हुए कि उसका मार्गदर्शन हमें मिले। So why do we fast? और हम क्यों उपवास करते We हैं? fast for our families, हम अपने परिवारों के लिए उपवास करते to हैं alter the declared judgments of God, और जो परमेश्वर ने जो न्याय की घोषणा की है उसको बदलने के लिए हम उपवास करते हैं to destroy the spiritual interferences of Satan, और जो आत्मिक विरोध शैतान करता है उसको रोकने के लिए हम उपवास करते हैं to triumph in all our adversities, और जो हमारे विरोध में जो कार्य होते हैं उसमें हमें जय प्राप्त करने के लिए हम उपवास करते हैं impact the ministries, और जो सेवकाइयां हैं उसके ऊपर प्रभाव डालने के लिए हम उपवास करते हैं fast for the nations, और हम जो है देशों के लिए उपवास करते we हैं fast for God's guidance. और हम जो है उपवास करते हैं ताकि हम परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन को प्राप्त May करें God bless every one of our fasting days, और परमेश्वर हमारे हर एक उपवास के दिनों को आशीषित so that we करे can see the power of God being released through our fasting. ताकि हम अपने उपवास के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ को देखने We will पाए be able to operate the weapon of fasting in the right way. और हम जो शस्त्र है उपवास का उसको एक सही तरीके से इस्तेमाल करने We पाए will be able to call upon God to come and intervene in our situation. और हमारी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखकर हम प्रार्थना करें और वो आके हमें हस्तक्षेप We will करें be able to concentrate upon God. और हम अपना पूरा ध्यान जो है परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करने And चाहिए we'll be able to mourn for the condition of the churches, condition of our own selves, and condition of the destroying world. और हम जो है विलाप कर सके अपनी जो स्थिति है अपनी कलीसियाओं की जो स्थिति है और जो दुनिया की जो स्थिति है उसके ऊपर Come, let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करें। Let's thank God for this word that God has spoken to us. परमेश्वर हमसे बातचीत किया है, हमारा फास्टिंग को परमेश्वर रूपांतरित करना चाहता है। God wants to transform our fasting. It is not a ritual, but it is powerful. वो कोई रीति रिवाज नहीं है उपवास, परंतु वो सामर्थ्यशाली है। परमेश्वर की सामर्थ रिलीज होती है, इसलिए इस बात को हम याद करें और हम हमारे उपवास के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करने वाला बन सके। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपके वचन के प्रकाश के लिए, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे प्रार्थना और उपवास की जिंदगी को रूपांतरित कर। Lord, we pray that you will transform our fasting and our prayer life, Lord, and you will be able to see great breakthroughs, Lord, through our fastings, through our prayers. परमेश्वर पिता हम अपने उपवास की प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े ब्रेकथ्रूज को देख सकें, आत्माओं को बचते हुए देख सकें, कलीसिया बढ़ते हुए देख सकें। कलीसिया की बिल्डिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं और बाकी सारी बातों के लिए प्रभु जी आप हमारे लिए प्रभु जी तो महान कार्यों को कर राजा। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को गाइडेंस दे प्रभु जी, हर एक के द्वारा सेवकाइयों को, हर एक व्यक्ति जो सेवकाई करता है उसको प्रभावशाली बना दे। हर एक व्यक्ति को अनुग्रह करके वो हम देशों के लिए प्रार्थना कर सके। हर एक को प्रभु जी अनुग्रह कर ताकि हम लोग हर परिस्थिति में जीवन से बढ़कर हो सके और दुष्ट आत्मा की ताकतें जो हमारे विरोध, हमारे परिवार के विरोध, हमारे कलीसिया के विरोध काम करती है उसकी सारी ताकतें टूटने पाए और लोगों को प्रभु जी सब प्रकार के बंधनों से हम छुटकारा देने वाले बन सके। पिता हम आपका धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं, सबको तेरे नाम पर हम आशीषित कर। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और सबने कहा आमेन आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, fellowship and the anointing of the Holy Spirit, our Comforter, be with us all now and forever.